Now, if you see this article, this is a huge article. There are so many paragraphs. So obviously we cannot comprehend, at least I cannot comprehend the complete passage at once. So the best idea or best approach what I do is that I just write a small summary. For example, if I read this whole article, sorry, this paragraph, I write a summary in a one sentence. The same goes with all the paragraphs. इससे होता क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, एंड यू विल गेट एन रॉ आइडिया कि किस पैराग्राफ के बारे में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन इन केस वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन. Okay, so let's approach this article. Australia isn't known for its building world-leading artificial intelligence system, but the island nation might just become the moral compass for how the rest of the democratic world approaches them. Last week, Australia took a stand on what they become the defining issue of AI age, how machines learn and what expenses. When we say what expenses, it is directly asking that uh, on what cost they are going to replace. Okay, AI is going to replace humans. At what cost? Let's read further. We will develop better understanding कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं. Okay, so in first paragraph क्या बताइए? Obviously the introduction. What is the introduction? That about Australia, they have developed some system that will solve the issue of AI, which is going to replace people, but obviously they got some measurement on which they will decide कि कैसे वो replace करेगा या क्या replace नहीं करेगा वो. Okay, parameters, basically parameters. Okay, the story begins with a think tank most people barely know, Australia's Productivity Commission. Okay, in August it released a dense report titled Harnessing Data and Digital Technology. Buried in it was a radical idea to give AI companies a free mind copyrighted content. Okay, अब now इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला गया है. Now if we read it carefully, we will understand one thing कि ये जो think tank की बात कर रहे हैं. Okay, think tank की बात कर रहे हैं. Which think tank? They are talking about most people in the Australian Productivity Commission. Okay, Australian Productivity Commission, it actually released a report. क्या report का नाम क्या है? Title Harnessing Data and Digital Technology. The important one is buried in it was a radical idea. Okay, what they are talking about now, this sentence is an important one. ये जो रिपोर्ट ने दिया, इस रिपोर्ट में क्या था कि रेडिकल आइडिया गिविंग एआई फ्री पास. एआई को फ्री पास देंगे किस चीज के लिए? टू माइंड कॉपीराइटेड कंटेंट. दे आर टॉकिंग अबाउट सम कॉपीराइट कंटेंट which will be replaced by AI. Okay, कौन से copyrighted content? What is it copyrighted content means? मतलब ऐसा कंटेंट जिसको किसी स्पेसिफिक पर्सन ने बनाया है और उसी के पास लीगल राइट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसको जो भी करना है दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल गॉट दी लीगल राइट्स. ओके, अब ये बोल रहा है कि फ्री पास मिल जाएगा एआई जो कि इसको रिप्लेस करने के चांसेस है, किसको? इंडिविजुअल को. ओके, नाउ इस पैराग्राफ में ये बताया गया. फर्स्ट पैराग्राफ में वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ अंडरस्टूड, थर्ड पैराग्राफ. The commission called it a text and data mining exception, which simply means that books, journalism, songs, and art could be scrapped to train AI models without asking permission or paying for it. Clearly telling us that इसको जो AI को ट्रेन करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है. किसको यूज किया जा रहा है? Journalism, songs, art could be scrapped to train AI without asking permissions and paying for it. ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये इसके बारे में बात कर रहा है. जो कॉपीराइट कंटेंट है ये बोल रहा है कि जो डेटा है, डेटा सेट को यूज करके हम अपने एआई को हम ट्रेन करेंगे. ओके ओके, इसके बारे में ये पैराग्राफ दिया गया, मतलब बहुत इंटरलिंक्ड बहुत है. अब दिस पैराग्राफ, दिस कमीशंस reasoning sounded pragmatic. Okay, AI needs
टोम्स ने टन्स है, यानी tons of data to improve and remove copyright barriers was aimed at helping the island nation catching up the global tech race. इतना जब पढ़ा हमने, विल कंटिन्यू रीडिंग, बट इतना जब पढ़ा तो समझ में आ रहा है आपको कि एआई जो है इसको बहुत सारा डेटा चाहिए एक डेवलपमेंट, यू नो, टू टू इम्प्रूव इटसेल्फ। एआई खुद तो कुछ नहीं कर सकता, इट नीड्स टू फीड द डेटा, टन्स ऑफ डेटा। ओके, tons of data. Again, what is the reason? Aimed at helping to island nation to catch up the global tech race. Okay, but the logic misses a moral and economic truth that AI can't live off art forever. Free art. AI can't live off free art forever. Again, क्या बोला जा रहा है ये कि AI जो है ना, ये फ्री में जो है इसको नहीं कर पाएगा. What does it need? Someone to feed it. ओके, सो ऑब्वियसली कि ये जो बताया गया है कि इसको सब कुछ जो है, यू नो, नॉट एवरीथिंग एआई कैन डू, इट नीड्स डेटा सेट्स विच ऑब्वियसली विल बी, इट रिक्वायर्ड सो मेनी डेटा सेट्स जो देने पर ही एआई काम कर पाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। सो इस पैराग्राफ में क्या था कि इट नीड्स टन्स ऑफ डेटा। टन्स ऑफ डेटा कौन सा? जो कि क्रिएटर्स ने जो बनाया है, जो हाई क्वालिटी जो डेटा है उसको ये देना पड़ेगा टू ट्रेन इटसेल्फ। ओके, नाउ एवरी डेटा सेट दैट powers machine intelligence is built on the human creativity to treat that work as free fuel. Okay, now look at free fuel to erode the very culture that makes intelligence artificial and otherwise worth having. Okay, it's a simple one. What does it tell you? कि जो डेटा हम जो इनको देंगे, जो फीड कर रहे हैं हम लोग, इज बिल्ट ऑन द ह्यूमन क्रिएटिविटी। इट इज ऑब्वियसली दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट कि ये खुद नहीं कर सकता, जो हाई क्वालिटी जो डेटा क्रिएट किया जाएगा उसी को फीड किया जाएगा, तभी ये एआई स्मार्ट बन पाएगा। ओके, तो मशीन इंटेलिजेंस बिल्ट ऑन द ह्यूमन क्रिएटिविटी टू ट्रीट दैट वर्क इज फ्री फ्यूल। इट इज नॉट फ्री फ्यूल, इट इज क्रिएटिव पीपल ने क्रिएटिविटी के साथ जो डेटा क्रिएट किया है, जो डेटा कलेक्ट किया है, so that is not free fuel. Okay, to erode the very culture that makes the intelligence artificial or otherwise worth having. ये फ्री नहीं है, it got some value. Okay, it got some value. ये पैराग्राफ क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Predictably, the reaction was fierce. Authors, artists, news organizations. ये हमने कहाँ पढ़ा था? इस पैराग्राफ में कहीं पढ़ा था हमने, या ओके। For this new organization accused the government of handling their work to big tech for nothing. Okay, nothing. The outrage reached Canberra and Attorney General, this one, drew a line in the sand. Now it tells that, you know, drew a line in the sand. ये बोल रहा है कि लिमिट इसने बना दिया कि ये क्रॉस नहीं कर सकते आप। और क्या क्रॉस नहीं कर सकते? लेट्स सी। Australian creatives are not only world class, they are the lifeblood of Australian culture. Okay, it's obvious for any culture as well. Okay, the creative people are obviously related to their culture as well. कल्चर के जैसे रहेगा वैसे क्रिएटिविटी भी रहती है उनकी। ओके, शी सेड किसके बारे में बात कर रहा है? ये इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, अटॉर्नी जनरल मिचेल रोलैंड। ओके, शी सेड टेक्नोलॉजीज एडवांस मस्ट नॉट कम एट एक्सपेंस। किसके एक्सपेंस? इनको रिप्लेस करके। किनको रिप्लेस करके? ये इनकी बात कर रहे हैं। ओके, जो क्रिएटिव लोग हैं इनको रिप्लेस करके हम एआई को आगे नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वी हैव टू रेस। कहाँ लिखा था? वी हैव टू कैच अप द रेस। विद दैट द ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। विद दैट द गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द proposal and set up the copyright and AI reference group. Okay, tasked with designing new license models to ensure the creators are paid when their work trains AI. अब आप पूरा लिंक कर पा रहे होंगे यहाँ पर कि क्रिएटिव लोगों ने कुछ क्रिएट किया, उसको ये लोग क्या कर रहे थे? कौन? एआई कंपनी वाले
विदाउट कॉपीराइट के प्रोडक्ट्स को ये लोग जैसा डेटा को ये लोग फीड कर रहे थे इसको। तो क्रिएटिव लोगों ने बोला कि ये गलत हो रहा है, दे कंप्लेंट एंड शी ड्रू अ लाइन कि इसके आगे क्रॉस नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम ये है टास्क डिजाइनिंग when they work train to train the AI। इसके लिए पे करना पड़ेगा, किसे पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्रिएटिव पीपल। ओके, दे शुड ऑब्वियसली गेट सम मनी, क्योंकि उनके क्रिएटिव वर्क को यूज किया जा रहा है। ओके, टेक्निकल ट्विक्स ऑन पेपर बट अ सेस्मिक शिफ्ट ऑन द ग्राउंड। सेस्मिक क्या होता है? उस हल्का जो चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली द थिंग्स आर चेंजिंग इजंट इट। जैसे एआई आ रहा है, एआई को आप जब डेटा फीड कर रहे हो, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द सेम, देयर विल बी सम चेंजेस। ओके, Australia has become the first major democracy to say unequivocally that human creativity is not public property just because it's online। its stance that will reverberate क्या होता है? वाइब्रेट होता है। रिवर्बेट मतलब दूर तक इसकी बात जाना। stance that reverberate far beyond its borders। okay, world democracy must take stance how the AI companies can train their models using the text and data from the copyright material। So that's what they are telling that जो हमने लाइसेंस बनाया है, लाइसेंस इसलिए बनाया ताकि हम लोग बिना कोई भेदभाव के हम लोग जो है ये AI को ट्रेन कर सके विथ हाई क्वालिटी डेटा दैट इज क्रिएटेड बाय द क्रिएटिव पीपल। और ये मैसेज जो है बाकी लोगों तक गया है। इफ द AI सिस्टम डिपेंड on human generated content, who controls the input and how the profit shared between the parties? It's an easy one. Data is critical to AI and restricting access can slow innovation। Okay, critical to AI, okay, and restricting access slow innovation, and today's AI model have already consumed most of the internet text art. This what left are the works of the art and literature that are yet to be produced. It is high time that the government around the world wake up and put up a working mechanism to place where human creativity fairly compensated by the AI companies that ethically scrapped on the web to train the AI model। So इसमें लगभग कंक्लूजन के बारे में कंक्लूजन शुरू कर दिया इसने। आप यहाँ से क्या दिया देखो, AI डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन जनरेटेड इनपुट हाउ दी प्रॉफिट्स आर बेस्ड इन। ओके, यहाँ तो शेयरिंग की बात की गई। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अभी तक एआई ने जो है ना लगभग सारा डेटा उसने फीड कर लिया है खुद के लिए, एंड अभी वेट कर रहा है जो नेक्स्ट अभी जो प्रोड्यूस होने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी क्रिएटिव लोग हमारे जो भी क्रिएशन करने वाले हैं उसको भी ये फीड करेगा। बट द पॉइंट इज दैट दे शुड बी कंपनसेटेड फेयरली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। and by rejecting okay कुछ मिस नहीं की, by rejecting unrestricted scrapping, okay, rejecting unrestricted scrapping, Australia forces A companies to grow up. If they want high quality data, they will have to negotiate license and pay। That's not a roadblock but a next evolution। Obviously अगर आपको इवॉल्व करना है तो आपको ये नहीं करना है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वो लोग फ्री फंड में वो लोग माइन कर लेंगे कॉपीराइटेड कंटेंट को। उन्होंने बोला है कि यू शुड कोलैबोरेट विद द क्रिएटिव पीपल टू एंश्योर दैट उनको कंपनसेट भी बराबर मिले और आपको भी जो डेटा है वो बराबर मिले। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड। The AI industry stands at the crossroad. It can keep hovering up culture in the legal gray zone, inviting lawsuits, public distrust, or it can build something sustainable for this। Okay, so obviously AI companies अभी उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, that they should work collaboratively with the creative people, otherwise they will obviously they have to face on all those legal actions। Australia move offers a blueprint of the other democracy to follow up the innovation this processing power incentive no matter how clever machines can't live a free art। ये देखो फिर से वही बोला है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते फ्रीली, दे नीड क्रिएटिव पीपल। तो इस वाले देखो यहाँ पर कैसे इन्होंने स्टोरी को बनाया है, एंड द कंक्लूजन, द सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्टिंग पैराग्राफ्स कैसे दिया उन्होंने।
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, इट्स अ वेरी गुड वन एंड मैंने ट्राई किया कि पूरा इसको एलाबोरेटली एक्सप्लेन करने के लिए. थैंक यू. Well, that particular article was not very straightforward. What I realized that, first paragraph, there are so many things that were not clear, that what the article was trying to tell us. Second, when I read second paragraph, again थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हुई, लेकिन फिर तब भी पूरा क्लियर नहीं था. थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ जो समझ कर रहे थे हम लोग, वी वर सॉल्विंग दी पजल्स. पजल्स मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, जो आर्टिकल था, जब भी आरसी जब टफ रहता है, इजी नहीं रहता है, तो हम जब एक्टिव रीडिंग करते हैं, केयरफुली रीडिंग करते हैं, तो पैराग्राफ 1 2 3 4 जब जाते हैं, तो हमें धीरे 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 कहानी की समझ में आता है कि वो बोलना क्या जा रहा है. स्टार्टिंग में आपको नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल इस पैसेज में मेरे को स्टार्टिंग में पूरा क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ कुछ मैं फंस रहा था, लेकिन जैसे जैसे पैराग्राफ फिफ्थ सिक्स में गया तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि वो क्रिएटिव लोगों के बारे में बात कर रहा था, उसको रिप्लेस करने के बारे में बात कर रहा था. उसके पहले मेरा अजम्पशन था शायद ये इसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है वो. दैट्स हाउ वी विल सॉल्व, और हम और भी सॉल्व करेंगे, बट दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. थैंक यू.